Good morning to everyone. Uh, we have yesterday started with I have discussed the format of balance sheet with all of you. Today we will be doing the sums based on the format. So, see, this is the first sum which we will be doing today. Following is the summary balance sheet of Abhijit Limited as on 31st March 2017. So the balance sheet which is given is in horizontal form. What we will have to do is we will have to convert this balance sheet into the vertical form as we have discussed yesterday. The same format we will have to follow. So in the liability side, we can see that there is share capital. Share capital is owners fund because shareholders are owners, and share capital is contributed by the owners. General reserve is the reserve, so that also belongs to the owner, and capital reserve also belongs to the owner because that is also a reserve. Bank loan is long term loan, or you may say borrowed fund. Then we have creditors. Creditors is a current liability, and because creditors are our suppliers from whom we purchase raw material, or we uh, take a amount for a shorter period of time. This creditors may be for goods, maybe for expenses, and bank overdraft is a non-quick liability. Bank overdraft is a non-quick liability because, as we had discussed yesterday, and in the asset side we have fixed asset, plant and machinery, furniture. Tangible fixed asset, plant and machinery and furniture are tangible assets. Goodwill is an intangible asset, means we cannot touch or see the goodwill. We can only feel the reputation of the business, that is goodwill. We have investment, which comes under long term investment. We have debtors current asset, and we have stock, which is non quick asset. Yesterday, we had discussed that stock, prepaid expenses, advance tax, and advance for goods are non-quick assets. So now what we will do, we will convert this horizontal balance sheet into vertical form. So we will start like this: vertical balance sheet as on, what is the date given, 31/3/2017, and before this we can write the name. What is the name of the company? It is Abhijit Limited. So now how the format we looks: one column for particulars and three columns for amount. So this is the format: particulars, rupees, rupees, and rupees. So the first one, the liability side, we call as sources of funds. The liability, this is actually liability side, and the liability side in vertical balance sheet is called as sources of fund. मतलब business start करने के लिए funds चाहिए, money चाहिए, and from where do you get this money? That is known as sources. Sources means medium, zaria. From where do you get these funds? Sources of funds.
So sources of fund, the first source is capital A, known as owner's fund. Owner's fund can also be called as shareholders fund, or we may also call it as net worth, or you may also call it as owned फंड. तो एक ही ओनर्स फंड को, शेयर ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. एंड शेयर होल्डर्स फंड को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं या ओन्ड फंड भी बोलते हैं. तो इसमें व्हाट वी राइट, इसमें आता है शेयर कैपिटल. So is share capital given in the question? Check the question. Is share capital given? Yes. तो शेयर कैपिटल में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल इज गिवन. सो शेयर कैपिटल के अलावा शेयर होल्डर्स को और किस चीज में हक मिलता है? शेयर ओनर्स फंड में ओनर्स का हक किस में रहता है? इन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या है ये क्वेश्चन में? व्हाट ऑल आर द रिजर्व्स? लुक इनटू द क्वेश्चन. कौन सा रिजर्व्स है? शेयर कैपिटल लिख लिया. शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बट यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कैपिटल दिया है तो हमने लिख लिया, वी हैव रिटन. नाउ what is the other reserves and surplus में क्या है? We have two things given, general reserve and what is given? Capital reserve. तो जिसमें रिजर्व या फंड लिखा हो that is reserves and surplus. So apart other than profit and loss and securities premium, profit and loss भी रिजर्व है. It is also a saving of the company, that is net profit or net loss. Net loss होगा तो asset side में रहेगा. So here what we have, 20,000 it is given and capital reserve कितना दिया है? कैपिटल रिजर्व कितना दिया है? देखो, कैपिटल रिजर्व इज 10,000. I have written the share capital in the middle column because यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ये दोनों नहीं दिया. सी अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहता तो मैं इधर फर्स्ट कॉलम में लिखती एंड उसका टोटल सेकेंड कॉलम में. बट बिकॉज यहाँ पे directly they have given share capital, so I have written in the middle column. So you have to check the format which I have sent in the group also, and also I have recorded the lecture in recorded the last lecture. You can just go through that lecture again and see how the format is. See here, दो ही रिजर्व है, ओनली टू रिजर्व्स आर देयर. दोनों को ऐड करो, हाउ मच डू यू गेट? 30,000. 20,000 प्लस 10,000 इज 30,000. सो ये दोनों पे किसका हक है? शेयर होल्डर्स का हक है. तो इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं. तो हाउ मच इज द टोटल ओनर्स फंड? वी विल राइट इन द लास्ट कॉलम बाय एडिंग द मिडल कॉलम्स. शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल इज 1 lakh and reserve and surplus is 30,000. So this becomes 1,30,000. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, नेट वर्थ बोलो या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ओन्ड फंड. सो कैपिटल बी इज व्हाट यू से, वी से इट लोन फंड, borrowed fund, owed fund. So these are the various names of, see when a company requires finance, either it may get that finance from the owners,
that is the shareholders, or it may get that finance by borrowing, by the loan fund. We can also call it as long term borrowings. Long term borrowings. So here कौन सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्वेश्चन में? वी कैन सी हियर बैंक लोन. क्रेडिटर तो शॉर्ट टर्म है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म है, हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चाहिए, तो वी रिक्वायर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इट मे बी बैंक लोन, डिबेंचर्स, what else, bonds, fixed deposits, or fixed deposit. Normally fixed deposit is a amount from public, fixed deposit from public, or we may call it as public deposit. तो ये सब तरीका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का. तो यहाँ पे हमने जैसे कल डिस्कस किया था, देयर में बी सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन. तो अनसिक्योर्ड लोन में हमने पब्लिक डिपॉजिट को डाला था. तो बैंक लोन तो जनरली सिक्योर्ड होता है, कुछ भी बोला नहीं है, तो यू मे अवॉइड दिस सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का बाइफोकेशन, बिकॉज कुछ भी बोला भी नहीं है, और वी मे अज्यूम दैट बैंक लोन इज सिक्योर्ड. सिक्योर्ड मीन्स व्हाट? Secure means it has been taken keeping aside a security. कुछ तो asset को रख के हमने ये लोन लिया है, because bank generally will not give you finance if you do not keep any security. So bank loan कितना है? How much is the amount of bank loan? Bank loan is 50,000. So in the loan fund only one amount is there. Fictitious asset is not given in the question. होता तो हम क्या करते? रिजर्व्स एंड सरप्लस में से और शेयर कैपिटल में से माइनस करते. तो ये क्वेश्चन में चाहिए तो आई कैन शो यू हियर. 1 मिनट. आपको चाहिए कि मैं फिक्टिशियस असेट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों को ऐड करके 1 मिनट. I am showing you because one thing which is it is not there. Fictitious asset means imaginary asset, but it is not in this question, so I have not shown it. तो ये दोनों को ऐड करके हम क्या लेस करते हैं? fictitious asset. तो fictitious asset को हम miscellaneous एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी बोलते हैं. तो fictitious means these are shown in the asset side, but these are what? These are actually losses which may give benefit in the future. जैसे हमें था ना deferred revenue expenditures, that also can be referred as fictitious asset. but ये question में कोई भी fictitious asset नहीं है. There is fictitious asset का example क्या है? Profit and loss account, loss, debit balance. It is a fictitious asset. It is shown in the asset side. Preliminary expense मतलब company formation expense, underwriting commission, these are all discount on issue of shares, debentures are all fictitious asset. but ये question में fictitious asset है ही नहीं, तो वो nil है. तो 1,30,000 में से नील माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा. बैंक लोन का अमाउंट कितना है? डायरेक्टली हमने लास्ट कॉलम में लिखा 50,000, बिकॉज ओनली वन थिंग इज गिवन, एक से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे लिखते. और वन मोर थिंग, इसका भी एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिखाते हैं. सिक्योर्ड लोन 50,000 क्योंकि एक ही है, और एक चीज अनसिक्योर्ड लोन. इफ यू गो एज पर द फॉर्मेट, अनसिक्योर्ड कुछ है ही नहीं, तो ये नील. तो इसका टोटल हो जाएगा 50,000 बिकॉज देयर इज नो अनसिक्योर्ड लोन ना. तो ऑलरेडी टेकन द टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल sources of fund, या तो इसको we can say
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ए प्लस बी, दैट इज ओनर्स फंड प्लस लोन फंड कितना होता है, 1,80,000. ये हो गया. नाउ वी कम टू द असेट साइड. 1 मिनट. नाउ वी कम टू द असेट साइड. असेट साइड में को हम बोलेंगे ये जो पैसा मिला उसे यूज कैसे किया, इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. मतलब जो पैसा मिला है उसको कैसे यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हम लिखते हैं, यू कैन गो टू द फॉर्मेट एंड सी. एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम लिखते हैं फिक्स असेट्स. फिक्स असेट को नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं. करंट असेट मतलब असेट्स फॉर शॉर्ट पीरियड, असेट्स फॉर शॉर्ट पीरियड. तो नॉन करंट मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड. फिक्स असेट्स आर फॉर लॉन्गर पीरियड. सो फिक्स असेट को हम क्लासिफाई करते हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. सो tangible fixed asset, tangible asset and intangible asset. Tangible assets are assets which we can see, touch and feel. So and fixed asset means ये asset longer period के लिए हमारे पास होना चाहिए. तो क्वेश्चन में tangible asset कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी. एक बार खरीदा तो फॉर ईयर्स इट विल बी विथ अस. फर्नीचर एक बार खरीदा तो फॉर ईयर्स इट विल बी विथ अस. तो हम plant and machinery is 80,000 and furniture is 20,000. So what we will do, we will write here कौन सा दो चीज है, plant and machinery is tangible and what is tangible, furniture. तो क्या अमाउंट दिया है दोनों का, 80,000 and 20,000. ये दोनों को 80,000 एंड 20,000. सो ये दोनों को ऐड करते हैं. तो यहीं पे ऐड करके इसमें ना एक चीज ऐड करके, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया हो ना तो इसमें से हम लेस करते हैं डेप्रीसिएशन. बट ये क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन. सो हमने नील लिखा. And we have written here because tangible fixed assets have depreciation. इनका वैल्यू कम होता है because of depreciation. तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे intangible assets. Intangible assets. तो intangible assets कुछ है क्या थे, check in the question. Is there any intangible asset? Yes, we have goodwill 20,000. So we will write here intangible में क्या आएगा, goodwill. So we will directly write because एक ही चीज है तो we will directly write in the second column. दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल फिक्स एसेट कितना है हमारे पास, 1,20,000. इस 1,20,000 and after this what we have, B, capital B, long term investment. Here we write long term investment. So let us go in the question. Is there any long term investment? यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके 40,000 दिया है तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज लॉन्ग टर्म. सो हमने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन द लास्ट कॉलम लिखा 40,000 बिकॉज ओनली वन इन्वेस्टमेंट इज देयर. अगर एक से ज्यादा होता तो पहले कॉलम में लिख के डायरेक्टली लास्ट कॉलम में वी वुड हैव रिटन द टोटल. एंड वन मोर थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ कौन से कॉलम में लिखूं. तुम लोग को एग्जाम में पूरा सम नहीं आने वाला है, ऐसा सम नहीं आने वाला है, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स कैन कम. तो उसमें कौन सा कॉलम में लिखूं इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज तुम लोग को ऑप्शन दिया रहेगा. तुम लोग को
वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट सम छोटा छोटा, तुमसे कुछ थोड़ा वर्किंग दिया, जैसे मैंने नेक्स्ट सम दिया है उसमें छोटा छोटा सम्स दिया है, उस पर तुम लोग को एक एक चीज कैलकुलेट करना, जैसे ओनर्स फंड कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, लोन फंड कितना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ऐसे छोटा छोटा सम, उसमें कॉलम डज नॉट मैटर। तो ऐसे तुमको पूरा ऐसा वाला सम एग्जाम में नहीं आएगा, पूरा कन्वर्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल फॉर्मेट। ये तो दिस इज द चैप्टर, सो आई एम डूइंग एवरीथिंग, यू मेक इट अ स्मॉल स्मॉल वर्किंग टू डू। जैसे सिर्फ वर्किंग कैपिटल कितना है ये सॉल्व करके बताओ, ऐसे करके छोटा छोटा विद ऑप्शंस सम विल कम, एंड तुम लोग को ऑप्शन में दिया है आंसर, तुम लोग को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके तुम लोग को सही ऑप्शन को टिक करना है या सबमिट करना है। सो हियर सी, फिक्स एसेट देखा हमने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। सी को क्या बोलते हैं, जो पैसा हमें मिला है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर बाइंग फिक्स एसेट, फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। what is working capital? Working capital is a capital required for the day to day running of the business. तो working capital कैसे मिलता है, current asset माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट को भी हमने क्लासिफाई किया है एज क्विक असेट एंड नॉन क्विक असेट। क्विक असेट आर दोस असेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यहाँ पे हमारे पास करंट असेट कितना बचा है, करंट असेट में दो ही है, एक डेटर है ये और एक स्टॉक है। what is quick asset, easily converted into cash? So quick asset में क्या आता है, डेटर आता है, और नो सी क्विक asset में तो सारे करंट asset आते हैं एक्सेप्ट स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। सो कुछ भी प्रीपेमेंट्स है, हमने एडवांस में पैसा दिया है, तो वो सब है नॉन क्विक असेट। एंड स्टॉक, स्टॉक बाई वी, देखो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। आप क्या जबरदस्ती किसी को अपना गुड सेल कर सकते हो, नो। so therefore stock is non quick asset and prepayments, अगर कुछ भी हमने एडवांस में पैसा पे किया है तो दोस आर नॉन क्विक असेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास डेटर है और स्टॉक है, डेटर इज 20,000 एंड स्टॉक इज 10,000। सो वी विल राइट हियर क्विक, क्विक असेट में क्या आएगा, डेटर्स आएगा। डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर का अमाउंट है 20,000, करेक्ट ना। डेटर इज 20,000 एंड स्टॉक इज 10,000। सो इसमें डेटर लिखा एंड नेक्स्ट वन इज 1 minute, सी डेटर लिखा, डेटर के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये क्विक है, दिस इज क्विक असेट, एंड इसके बाद नीचे वी विल राइट नॉन क्विक, नॉन क्विक असेट। सो नॉन क्विक असेट में, नॉन क्विक असेट में only one they have given, that is stock. स्टॉक का अमाउंट क्या दिया है, इट इज 10,000, स्टॉक इज 10,000। तो दोनों को ऐड करके यू गेट हाउ मच, 30,000। इसको बोलेंगे टोटल करंट, टोटल करंट असेट्स। इसके बाद बी, हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल मिलने के लिए हम लेस करते हैं बी करंट लाइबिलिटी, करंट असेट में से लेस करते हैं
करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में क्या है, लेट अस सी इन द क्वेश्चन। करंट लाइबिलिटी में there is creditor and bank overdraft. Current liability are those liability which are with us for a short period of time, so we will be paying it in a short period. तो creditor हमारे suppliers, इनको हम जल्दी पे करेंगे। तो creditors एंड नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी आप कभी भी याद कर सकते हो। नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी में सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बाकी सब करंट लाइबिलिटी क्विक है। नॉन क्विक में ओनली वन विल कम, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सो यहाँ पे दो है, क्विक क्रेडिटर है और नॉन क्विक बैंक ओवरड्राफ्ट है, दोनों का अमाउंट 5000 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में हम लिख लेते हैं क्विक, और क्विक में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड अमाउंट हम लोग को लिखना पड़ेगा 5000। देन वी हैव नॉन क्विक, नॉन क्विक में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका अमाउंट ऑल्सो इज 5000। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट लाइबिलिटी, which is how much, which is how much, 10,000। सो ये दोनों को ऐड किया, इट इज 10,000। सो नाउ अगर चाहिए तो टोटल करंट असेट कितना है, तो 1 मिनट, टोटल करंट असेट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 30,000, टोटल करंट लाइबिलिटी है 10,000। हाउ डू वी गेट द वर्किंग कैपिटल, हाउ डू वी गेट द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा जब आप करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे। तो स्मॉल ए में से स्मॉल बी, हाउ मच यू आर गेटिंग, ए माइनस बी, हाउ मच यू आर गेटिंग, 30,000 माइनस 10,000, यू आर गेटिंग 20,000। सो ये भी हो गया, 1 मिनट, ये भी हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल, टोटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या तो हम बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना होगा, ये कैसे मिलता है, देखो आई विल शो इन द ब्रैकेट, ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज ए इज फिक्स असेट, ए इज फिक्स असेट, फिक्स असेट का टोटल मिला 1,20,000, बी इज इन्वेस्टमेंट 40,000 एंड सी इज वर्किंग कैपिटल 20,000। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 1,40,000 60 एंड अगेन 20 इज 1,80,000। तो हम लोग ऊपर चेक करो, टोटल सोर्सेस भी 1,80,000 था और टोटल एप्लीकेशन भी 1,80,000 है, मीन्स आवर आंसर एज tallied, मतलब our sum is correct. Both total funds and total applications are, total sources and total applications are same. तो ऐसे ही होना चाहिए। तो this sum is done. Now we will do the second sum. So let us read this sum. Calculate शेयर होल्डर्स और ओन्ड फंड, ओन्ड फंड मतलब क्या, ओनर्स फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो हमें दिया है क्वेश्चन, इसमें हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ओनली ओन्ड फंड, पूरा सम नहीं सॉल्व करना है। ऐसे सम्स में कम इन योर एग्जाम, मतलब तुम लोग को इतना इंफॉर्मेशन दिया, 4 ऑप्शन दिया और तुमको करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना, उसके लिए यू हैव टू सिट विद द पेन, इफ यू वांट सिट विद द पेपर एंड बुक ऑल्सो अलॉन्ग विद कैलकुलेटर।
सो दैट तुम लोग रफ में कैलकुलेट करो, कैलसी यूज करो और फटाफट आंसर लिख सको। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तुम लोग को 1 मिनट में होना चाहिए, 1 या 2 मिनट में, उतना ही टाइम हम दे सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल चाहिए। तो शेयर कैपिटल में क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। हमें क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, फिर हमें दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जब हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को प्रीमियम में सेल करते हैं ना, प्रीमियम मतलब मोर देन द फेस वैल्यू, तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करते हैं प्रीमियम का, वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में सेव करते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व, general reserve is a reserve, capital redemption reserve is a reserve, capital redemption reserve is a special reserve जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रीपे करने के लिए, वापस करने के लिए हम सेविंग करते हैं। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट मतलब हमेशा समझ में रखना, डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है क्या, चेतो आई विल राइट हियर आल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ लॉस। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दिया रहेगा ना, डेबिट मतलब असेट साइड में लिखते हैं, एंड डेबिट बैलेंस मतलब इट इज नेट लॉस। ये तुम लोग को समझना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। तो ये लॉस कितने का है, 40,000, मतलब ये फिक्टिशियस असेट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, फिक्टिशियस असेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिक्टिशियस असेट है। शेयर इशू एक्सपेंस भी फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस असेट हम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में से लेस करते हैं। फिर ये कॉल्स इन एरियर्स क्या है, कॉल्स इन एरियर मतलब शेयर कैपिटल में इतना पैसा नहीं मिला, तो इट इज कॉल्स इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन शेयर्स। शेयर में इतना पैसा नहीं मिला, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड। तो व्हाट वी विल डू, शेयर कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1,20,000 गिवन इन द क्वेश्चन। देन वी हैव 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, 80,000। दोनों में ये दोनों में से हमें क्या करना है, ये दोनों को ऐड करके कितना अमाउंट होता है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो अमाउंट होता है 2 lakhs। इसमें से लेस करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन शेयर्स है ना, इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो ये कितना हो जाएगा, लेस करना है तो ब्रैकेट में दिखा देते, कॉल्स इन एरियर्स है 10,000, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1,90,000। और इसमें हम क्या करेंगे, तो इधर लिखते हैं, किधर लिखते हो मैटर नहीं है, तुम लोग को ये क्लियरली समझना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके बाद लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो कौन सा रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या है, जनरल रिजर्व इज 15,000। फिर हमारे पास है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना है, 20,000।
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है 20,000, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 35,000 होता है। अब ये दोनों को ऐड करो कितना होता है, 1,90,000 एंड 35,000 कितना होता है, 2,25,000। इज इट करेक्ट? इसमें से लेस करेंगे, क्या बोलते हैं हम इसको, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट में हमारे पास क्या है, एक तो हमें दिया लॉस, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट मीन्स लॉस। अमाउंट कितना है इसका, इसका अमाउंट है 40,000। और हमारे पास है शेयर इशू एक्सपेंसेस, वी हैव शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस इज 20,000। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60,000। माइनस करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 2,25,000 माइनस 60,000 कितना होता है, शेयर होल्डर्स फंड 2,25,000, 2,25,000 माइनस 60,000, यू गेट 1,65,000। इसको बोलेंगे हम ओनर्स फंड, ओनर्स फंड। यही क्वेश्चन में पूछा है, दिस इज ओनली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ओनर्स फंड। सो यस, थैंक यू। यहाँ पे हमने एक रिजर्व को तो ऐड ही नहीं किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरा भी ध्यान डिस्कस करते वक्त बोला मैंने, बट यहाँ पे ध्यान नहीं, बाद में जब लिखते वक्त मैंने देखा ही नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो विल हैव टू बी रिटर्न हियर। हाउ मच ऐड करके कितना होता है, 25, 30, 40, 60 होता है ना, व्हेन यू ऐड, ये सबको ऐड करते तो 60 होता है। तो 1,90,000, 1,90,000 plus 60. Am I audible now? Am I audible now? Am I audible? अभी आ रही है आवाज? See, 1,90,000 plus 60,000 कितना होता है, 2,50,000। It is 2,50,000। 2,50,000 में 60,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,90,000, 1,90,000। क्या हो गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा ही नहीं, डिस्कस करते वक्त बोला सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ रिजर्व, जहां पे हम क्या सेव करते हैं, वहां पे हम प्रीमियम जो कलेक्ट होता है शेयर्स मार्केट में सेल करते वक्त, डिबेंचर्स मार्केट में सेल करते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में सेल करते वक्त जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा मोर देन द फेस वैल्यू, जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं, दैट इज सेव्ड इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज ऑल्सो अ रिजर्व। तो ये तीनों को ऐड करके इट इज 60,000। उस 60,000 को जब शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 2,50,000, जिसमें से 60,000 का लॉसेस माइनस किया, फिक्टिशियस एसेट माइनस किया, तो वी गेट ओनर्स फंड एज 1,90,000। See, we now next question, calculate capital employed from the following information. Capital employed means टोटल ऑफ असेट और टोटल ऑफ लाइबिलिटी, दोनों को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो कैपिटल, ये जो असेट का टोटल होता है और लाइबिलिटी का टोटल होता है हमेशा बैलेंस शीट में सेम होता है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल दिया है इज 2 लाख, जनरल रिजर्व मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस इट इज 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स pay attention, credit means profit, net profit,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मीन्स नेट लॉस। तो प्रॉफिट है मतलब रिजर्व्स में आएगा, एंड लॉस है मतलब फिक्टिशियस असेट बोलेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मींस कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब फिक्टिशियस असेट, कंपनी फॉर्म होते वक्त हमें यूज खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन का सब, तो वो हम असेट साइड में दिखाते हैं, एंड ओवर ईयर्स व्हाट वी डू, वी चार्ज इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज फिक्टिशियस असेट। फिर हमारे पास है लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन फ्रॉम एसबीआई मतलब दिस इज अ लॉन्ग टर्म लोन, तो दैट इज 50,000। क्रेडिटर्स मतलब करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स तो हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम करंट लाइबिलिटी दिखाते, तो ये आइटम को हमें इग्नोर करना है, ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड का निकालते वक्त हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो है इसको तो हमें, ये कुछ भी हमारे लिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कुछ भी काम का नहीं है, जस्ट टू मिसगाइड अस दिस इज गिवन। तो ये तो इग्नोर करना है, क्रेडिटर्स को तो इग्नोर करना है। तो लेट अस कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओनर्स फंड। ओनर्स फंड कितने आता है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन इट इज हाउ मच? 2 lakhs। फिर हमें चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हमें चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या दिया है? जनरल रिजर्व दिया है, इट इज अ रिजर्व। फिर क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब हम रिजर्व में लिखेंगे? व्हेन इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब नेट प्रॉफिट। 80,000 है जनरल रिजर्व, एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है नेट प्रॉफिट है 25,000। तो ये दोनों को ऐड करनी है, सबको ऐड करने पे हमें कितना आएगा? 2,80,000 एंड 3,05,000। ये सबको ऐड करने पे हमें मिला 3,05,000। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्टिशियस असेट विच इज व्हाट? प्रीलिम, चाहिए तो ऐसे लिखती हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिक्टिशियस असेट उसमें लिखते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देखो मैंने जो फॉर्मेट दिया है उसमें आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। फिक्टिशियस एसेट इज 5,000। सो हमारा शेयर कैपिटल हो जाए, अपना ओनर्स फंड हो जाएगा 3 लाख। ओनर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल में ओनर का हक है, जो कंपनी का सेविंग है उसमें हक है, और सेविंग अगर कंपनी ओनर्स को मिल रहा है तो लॉसेस भी उनको ही मिलना चाहिए। तो सेविंग और कैपिटल में से हम लॉसेस माइनस करते हैं, तो ओनर का पैसा है 3 लाख। अब हम लोग एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज बोरोड फंड या लोन फंड। लोन फंड में क्या दिया है हमें? लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन फ्रॉम एसबीआई, ये कितने का है? ये है 50,000 का। तो कैपिटल, अभी ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। दोनों को ऐड करने पे कितना होता है? 3,50,000। दैट इज व्हाट? दिस इज नोन एज capital employed. This is known as capital employed. Capital employed is how much? 3,50,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैसे मिलता है? जब हम ओनर्स फंड, मतलब कितना पैसा बिजनेस में हमारे पास है, सोर्सेस ऑफ फंड। एक तो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर का 3 लाख है, और हमने बोरो किया 50,000, तो टोटल हमारे पास है 3,50,000 which we can use in the business to purchase fixed asset, to do the investment, to run the business which is known as working capital। तो ये 3,50,000 हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं फॉर purchase of fixed asset, for purchasing investment,
for डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सबके लिए हम 3,50,000 यूज करेंगे। तो ये क्रेडिटर्स को क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, वो हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त यूज करते हैं, ये यहाँ पे यूज नहीं करते। तो दिस इज डन।